everyone. As we talk about for the chemical properties or the chemical reaction of the aldehyde and ketone. So let's start. I have just talked about for the reaction related to the hydroxylamine, then phenylhydrazine, hydrazine, then so many reactions like the Clemmensen reduction, Wolff-Kishner reduction, so on. Clear? Today we have to talk about the reaction with the first reaction with red phosphorus and Hi. Clear? Today, when the carbonyl compound is treated with the red phosphorus and Hi, then the carbonyl group it changes into the methylene group after the removal of the water. Clear? So in this way, we can prepare the alkane. Clear? So this is the reaction. Suppose when you put here H, then the compound will be the formaldehyde, and when this formaldehyde is treated with the red phosphorus and hydrogen iodide, then it will changes into the methane after the removal of the water molecule. Clear? Now I talk about for the second reaction. This is the Meerwein-Pondorf Verlet reduction. In shortly, this reaction are also known as MPV reduction. Meerwein-Pondorf Verlet reduction is also known as MPV reduction. Clear? In this reaction, ketone is changes into the 2-degree alcohol. This is the acetone, and when this acetone is treated with the isopropyl, or you can also write here only carbonyl group. When this carbonyl group is treated with the isopropyl alcohol in the presence of aluminium isopropoxide, the formula is CH3 whole thrice CHO, this whole thrice. This is the aluminium propoxide. When this compound is treated with carbonyl group is treated with the isopropyl alcohol in the presence of aluminium propoxide, then it will changes into the secondary alcohol after the removal of the acetone, and the reaction is known as Meerwein-Pondorf Verlet reduction. Clear? Or shortly it is known as MPV reduction. Clear? Now I will talk about for the second most reaction, very important reaction of the carbonyl compound, that is the aldol condensation. The third reaction is known as, here we have to consider aldol condensation. Very important reaction for you, aldol condensation. From this portion, the question will be asked in the board examination. So you have to follow, or you have to remember this reaction. Clear? So first, what is the aldol condensation? When in this type of reaction, first in aldol condensation, that type of reaction, or in this type of reaction, only that aldehyde or ketone are involved which have at least one alpha
hydrogen atom or alpha carbon atom. Clear? So this type of reaction is more common in only that the number of aldehyde. Okay, so this type of reaction is more common in only that aldehyde or ketone which contain at least one alpha hydrogen atom. Clear? This reaction is very common in that aldehyde or ketone which contain at least one alpha hydrogen atom. Suppose some examples of the aldehyde and ketone are given to you and you have to find out that it will contain alpha hydrogen atom or not. Then how you will predict? The first example is the acetaldehyde or ethanol. Acetaldehyde or ethanol. The formula of acetaldehyde or ethanol is CsBCHO. Clear? You can see here, this is the functional group. Clear? The functional group is the CHO, that is the aldehyde group, and just adjacent to this group, the carbon is considered as alpha carbon. Clear? Clear? Means आप यहाँ पे अगर फंक्शनल ग्रुप गिवन है, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप के ठीक बगल में जो कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन कंसीडर करेंगे. अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर अल्फा कार्बन ये हो गया और अल्फा कार्बन के पास जितना हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा. तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल में कितना अल्फा हाइड्रोजन है तो आप कहोगे 3. क्लियर? अंडरस्टैंड? ऐसे ही मान लीजिए आपको दूसरा नंबर एग्जांपल दिया गया है एसीटोन. क्लियर? तो एसीटोन में इसका फार्मूला जो होता है वो CH3C डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड CH3. सो आप देख सकते हो कि ये कीटो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है. क्लियर? और इस फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट में ये अल्फा कार्बन होगा और ये भी अल्फा कार्बन होगा. यानी एसीटोन के केस में दो अल्फा कार्बन आप देख रहे हो, तो इसका मतलब जब अल्फा कार्बन ये है तो इसके पास जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा. तो इस केस में यानी एसीटोन में टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है, एसिटाल्डिहाइड में टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है. और हमने ये आपको यही बताया है कि एल्डोल कंडेंसेशन shows only by that aldehyde and ketone which contain at least one alpha hydrogen atom. इसका मतलब ये है कि वही एल्डिहाइड और कीटोन इस एल्डोल कंडेंसेशन के फेवर में होंगे जिनके पास कम से कम एक हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन हो. तो यहाँ पर तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी ये एल्डोल कंडेंसेशन के फेवर में होगा. एसीटोन के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी ये भी एल्डोल कंडेंसेशन के फेवर में होगा. ऐसे कुछ और एग्जांपल हम आगे आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं. आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा एल्डोल कंडेंसेशन कौन से एल्डिहाइड या कीटोन शो करेंगे. तो ये आप ध्यान में रखोगे कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा वही इस रिएक्शन के फेवर में होंगे और जिनके पास नहीं रहेगा वो इस रिएक्शन के फेवर में नहीं रहेंगे. क्लियर है ना? जैसे मान लीजिए एज एग्जांपल दूसरा नंबर, अगर तीसरा नंबर एग्जांपल हम देखते हैं H सिंगल बॉन्ड CHO. ये है फॉर्मल्डिहाइड या मिथेनॉल. इस फॉर्मल्डिहाइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो CHO है ये फंक्शनल ग्रुप है. क्लियर?
और इस फंक्शनल ग्रुप के ठीक यहाँ पर एडजेसेंट में कोई कार्बन नहीं है, केवल हाइड्रोजन है, तो जब फंक्शनल ग्रुप के पास के ठीक बगल में या एडजेसेंट में अगर कार्बन नहीं है तो इसका मतलब इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है। तो जब अल्फा कार्बन ही नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि हम हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्ट नहीं कंसीडर करेंगे। हमने आपको बताया है कि सबसे पहले अल्फा कार्बन का होना जरूरी है, समझ गए ना। अगर अल्फा कार्बन नहीं रहेगा तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। तो इसका मतलब फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन नहीं है, तो इसका मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, तो ये एल्डिहाइड कंडेंसेशन शो नहीं करेगा। क्लियर है। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो ये है बेंजल्डिहाइड। ये बेंजीन रिंग पर CHO दिया है तो इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड अगर आपसे पूछा जाए क्या बेंजल्डिहाइड अल्फा मतलब एल्डिहाइड कंडेंसेशन के फेवर में है क्या, तो आप बोलोगे नहीं, ठीक है ना। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप के ठीक बगल में ये कार्बन तो है, हम इसको अल्फा कार्बन कहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी आप जानते हो 4 होता है। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो इस कार्बन की एक वैलेंसी तो ये CHO ग्रुप सेटिस्फाई कर दिया, एक वैलेंसी यहाँ पर ये सेटिस्फाई हो रहा है, और बाकी की 2 वैलेंसी ये डबल बॉन्ड से हो जा रहा है, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 हो गया। तो जब कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी 4 कंप्लीटेड है तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब तो जब अल्फा कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो वो एल्डिहाइड कंडेंसेशन के फेवर में नहीं होगा। समझ गया ना। यानी आप ये कहोगे कि ये एल्डिहाइड कंडेंसेशन शो नहीं करेगा, ये एल्डिहाइड कंडेंसेशन शो नहीं करेगा, रीजन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर है। ये दोनों एल्डिहाइड कंडेंसेशन के फेवर में होंगे, रीजन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अब समझ में आ गया कि अब एल्डिहाइड कंडेंसेशन कौन से एल्डिहाइड या कीटोन शो करेंगे। क्लियर है सबको। अब हम लोग बात करेंगे कि एल्डिहाइड कंडेंसेशन होता क्या है। ये तो हो गया कि कौन से एल्डिहाइड शो करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि एल्डिहाइड कंडेंसेशन में एक्चुअली होता क्या है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एग्जांपल लेकर एक एग्जांपल कंसीडर करके आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्लियर। इसमें होता क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ व्हेन two molecule of aldehyde or when 2 molecule of aldehyde or ketone having alpha hydrogen atom react with each other in the presence of dilute alkali, resulting to the formation of beta hydroxyaldehyde और कीटोन। क्लियर। यानी इसमें आप लिखोगे कि when 2 molecule of aldehyde or ketone having alpha hydrogen atom reacts with each other in the presence of dilute alkali resulting to the formation of beta hydroxyaldehyde or ketone. Clear?